میں خدا کا خادم پادری رانا اجمل جیکب ڈرائیونگ ڈائسس چرچ آف پاکستان آج صبح کے لیے سبت کے لیے جو کلام جو خیال خدا نے مجھے دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور خدا کے کلام میں سے پرانے عہد نامہ میں سے یشوع کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت کو دیکھیں گے۔ جن کے پاس خدا ان کا کلام ہے وہ اسے کھولیں، دیکھیں۔ یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت کو ہم دیکھنے کی جسارت کریں گے۔ خدا ان کے کلام میں یہاں اس طرح لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ دعا مانگے، ہم اپنے سروں کو جھکائیں، خدا ان کے کلام کو دیکھیں جو میری اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خدا نے دیا ہے، اسے ہم دیکھیں۔ خدا ان کا قادر مطلق زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتی ہیں، کیونکہ تو بھلا، تیری شفقت ابدی، تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ تو اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے، ان کو برکت دیتا ہے، تو ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے، خواہ کیسے بھی حالات کیوں نہ آ جائیں، تو اپنے لوگوں کو سنبھالے رکھتا ہے۔ تیرا کلام شہد کے ٹپکے ہے، جو اس کلام کو اپنی زندگی میں لے لیتا ہے اس کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے، خوشحالی آ جاتی ہے۔ آج تیرے کلام کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے، اور خدا ہم تیرے وفاداری کے ساتھ تیرے ساتھ لپٹے رہیں، تو ہمیں سنبھالے رہے۔ خداوند اپنے کلام سے، اپنے کلام کی کرنوں سے ہمیں منور کر، تاکہ ہم تیرے کلام میں بڑھتے جائیں اور ترقی کرتے جائیں اور بہت زیادہ پھل لائیں۔ تمام بیماروں کمزوروں کو تیرے سامنے لاتے ہیں، ملک کے حالات کو تیرے سامنے لاتے ہیں، دنیا کو تیرے سامنے لاتے ہیں۔ اس موذی مرض سے خداوند تو اپنے لوگوں کو رہائی بخش دے، کیونکہ تو ایسا کرنے میں قادر ہے۔ تو ہمیں برکت دینے کے لیے آیا ہے، تو ہمیں شفا بخش دے، ہماری زندگیوں میں معجزہ رونما کر، اپنے بچوں کو سنبھال اور اپنے لیے برکت دے۔ تیرے یسوع نام مانگتے ہیں، آمین۔ آج خدا کے کلام میں سے ہم یشوع کو بطور کامیاب قائد کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور دور حاضرہ میں خدا کی کلیسیا کو کامیابی کی طرف کس طرح سے ہم لے کے جا سکتے ہیں۔ یشوع کہ اگر لفظی معنوں کو دیکھا جائے تو ہوسیا یعنی نجات کے ہیں، کیونکہ یشوع جو ہے وہ نام ہوسیا سے تبدیل کر کے اس کا نام یشوع رکھا گیا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں پہلا تواریخ اس کا 7واں باب اور اس کی 22ویں اور 27ویں آیت تک اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ آج بہت ساری دنیا میں بہت سارے لوگ جو اپنی قابلیت، قوت پر فخر کرنا پسند کرتے ہیں۔ خورس عظیم قابل ذکر ہے جس نے کہا، میں دیوتا ہوں، اور اس نے فارسیوں کو ان کی سلطنت جیت کر دی۔ خواص اعظم کے یہ الفاظ اس کی عظمت اور اس کی عسکری قوت کو ظاہر کرتے ہیں۔ علاوہ اس کے شاہ بابل
नबूकदनेस्सर का बयान भी बड़ा फखरिया और तकब्बर का मुंह बोलता सबूत है, जिसने शाही महल में टहलते हुए कहा, क्या ये बाबल अजीम नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तामीर किया है, और दारुल सल्तनत मेरे जाहो जलाल का नमूना है। ये लोग जिन्होंने अपनी ताकत पर, अपने आप पर भरोसा किया और अपनी सल्तनत, अपनी हुक्मरानी में उन्होंने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम यशवा के बारे में देखने की कोशिश कर रहे हैं। यशवा को जब खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना तो वो बुढ़ापे के उस आलम में था जिस वक्त उसकी उम्र 85 या 90 के दरमियान उसकी उम्र थी, और खुदा ने उसको अपनी कलीसिया, अपने लोगों, कौम बनी इसराइल की क़यादत का ज़िम्मा सौंपा। वो अपने आप को कमजोर कहता है, वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं खुदा की खिदमत कर सकूंगा। अगर आप यिर्मयाह के बारे में देखें तो यिर्मयाह भी इस बात को बयान करता है और वो कहता है कि आए खुदावंद, मैं तो इस काबिल नहीं हूं कि मैं तेरी खिदमत कर सकूं। अगर आप यिर्मयाह पहला बाब देखें तो इसमें लिखा है, यिर्मयाह पहला बाब और उसकी 9वीं आयत को अगर हम देखें तो लिखा है, तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावंद ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया है। यानी आज के दिन मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया है। जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, खुदा के मकसद को अपनी जिंदगी में पूरा होने देते हैं, तो खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। अगर हम देखें हिजकिय्याह नबी का सहीफा, उसके 3 बाब की पहली आयत को, तो लिखा है, फिर उसने मुझे कहा, ए आदमजाद, जो कुछ तूने पाया सो खा, इस तमार को निगल जा और जाकर इस्राएल के खानदान से कलाम कर। तब मैंने मुंह खोला और उसने वो तमार मुझे खिलाया। फिर उसने मुझे कहा, ए आदमजाद, इस तमार को जो मैं तुझे देता हूं खा जा और इससे अपना पेट भर ले। तब मैंने कहा, मैंने खाया और वो मेरे मुंह में शहद की मानद मीठा था। प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में कलाम रखना चाहता है। जिस तरह यशवा से खुदा ने कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तेरा ध्यान इसी पर मरकूज रहे, तब जाकर तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। शरीयत की किताब की पाबंदी के बारे में खुदा फरमाता है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, जिसका मतलब है, अगर शरीयत को अबरानी में तोरा, जिसका मतलब है रास्ता या हदायत के, जबकि अरबी में
इसको तौरात और उर्दू में तौरेत कहा जाता है। यानी ये खुदा का इल्हामी कलाम है जो मूसा की मार्फत बनी नो इंसान पर जाहिर हुआ, और खुदा के अहकाम, खुदा की बातें उसने लोगों पर अया की। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। इस रास्ता पर, इस आयन पर अगर हम खरूज 20 बाब को देखें तो वहां पर खुदा ने अपने आयन मूसा के जरिए से कौम बनी इसराइल, बल्कि बनी नौ इंसान को, दुनिया को उसने अपने आयन बख्शे। आज उन आयन पर, उन रस्तों पर, उन हदायत पर हम अमल करना पसंद नहीं करते हैं, और शरीयत की इस किताब को छोड़कर हमने दुनियावी कहानियों को, मिथ को अपनी जिंदगी में ले लिया है। आज हम शायद गुनाह की तरफ गामजन हो गए हैं, जबकि खुदा ने तो कहा कि तू मेरे हजूर दूसरे माबूदों की परस्तिश ना करना। बल्कि आज मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम तो दूसरे माबूदों की परस्तिश कर रहे हैं, गुनाह की तरफ गामजन हो गए हैं। हम दूसरी देवी देवतों की परस्तिश करते हैं। जब मूसा खुदा के आयन लेने के लिए खुदा के पास गया तो नीचे हारून को कौम बनी इसराइल ने वर्गलाया, और उन्होंने एक ऐसे बछड़े को बनाया जिसकी वो पूजा कर रहे थे। उस वक्त भी इंसान खुदा के साथ नहीं था। उसने अपने लिए मूर्तों की तलाश की, उसने अपने लिए देवी देवतों की परस्तिश की, बाल की परस्तिश की, कब्रों की परस्तिश की। और हम देखते हैं कि जब सदरक मिसक अब्दुल-नजू बादशाह ने क्या किया है, बादशाह ने अपनी एक मूरत बना ली है। उस मूरत के सामने उसने क्या किया है कि लोगों को कहा है कि तुम इसके सामने झुककर सजदा करना। मगर उन खुदा के बंदों ने, सदरक मिसक अब्दुल-नजू ने क्या किया कि उस बात से इनकारी हुए। आज मैं और आप इन बातों से इनकारी नहीं है। कुरुज 20 बाब को, 10 अहकाम को जब हम देखते हैं तो खुदा कहता है कि तू ज़ना न करना, तू चोरी न करना, और वो सारे अमल, सारी बातें मेरी और आपकी जिंदगी में है। आज कलीसिया किस दाने पर खड़ी है? शरीयत की किताब को हमने रद्द कर दिया है, और आज हम खुदा के साथ चलना पसंद नहीं कर रहे हैं। खुदा के हुक्म को मानना मैं और आप पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वो कहता है बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। यानी तेरी नजरों से आयन, खुदा के आयन जो है वो दूर ना हो, बल्कि तेरा कलाम जो खुदा का कलाम है, राह चलते उठते बैठते इस पर ध्यान रहे। यानी अगर हम देखें तो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ले लें, आपके खून में, आपके बदन में, आपके रूह में रच जाए, और ये कलाम की जगाली करना। कभी आप जानवरों को देखें, जब वो खुराक खाते हैं तो उसकी जगाली वो बार बार करते हैं, उसको अच्छी तरह से अपने अंदर पहुंचाने के लिए वो अच्छी तरह से उसको मसलते हैं, और फिर उसका निचोड़ अपनी जिंदगी में ले लेते हैं। आज हमने खुदा के कलाम को तर्क करके अपने लिए शिकस्त हौज तैयार कर लिए हैं, जिनमें बदबू आती है, जिनमें से ऐसी बातें नजर आती हैं
जिनसे खुदावंद को नफरत है। क्या हम उसके कलाम को लेने के लिए तैयार हैं? क्या हम इस किताब को उठते बैठते अपनी जिंदगी में लेने के लिए तैयार हैं? जबकि खुदा का कलाम हमें बयान करता है कि ये शरीयत, इसको तवीज बनाकर अपने गले में डाल ले, इसके नक्श को अपनी जिंदगी में ले ले और इस अहकाम को अपने दिल की तख्ती पर लिख ले। मगर मैंने और आपने तो अपने घरों की चौखट पर से भी उसका नाम हटा दिया है। अपना नाम भी आज मसीह के नाम के साथ लगाना पसंद नहीं करते हैं। आज हम जाली मसीही, नकली मसीही हैं। मसीही लिखा तो होता है अजमल मसीह, हारून मसीह, फलाना मसीह, मगर अंदर मेरी और आपकी जिंदगी खोखली है। मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम नहीं है। मेरी और आपकी जिंदगी में उसका किरदार नहीं है। यीशु मसीह जो मेरी और आपकी जिंदगी है, अगर आप देखें, खुदा के कलाम को देखें, यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, तो उसके पहले बाब में लिखा है, अगर आप देखना चाहें पहली आयत से, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई है। फिर अगर आप 14वीं आयत को देखें तो लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के अकलौते का। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें मोहतात जिंदगी बसर करने की जरूरत है। हमने कलाम को अपनी जिंदगी में मुजस्सम होते हुए देखना है और उसका फजल और सच्चाई मेरी और आपकी जिंदगी में नजर आनी चाहिए, जिस तरह वो मेरी और आपकी जिंदगी में आ जाएगा जब ये तुमार हम निगल लेंगे। जिस तरह हिजकिय्याह की किताब में लिखा है कि जब हम इस तुमार को निगल लेंगे तो फिर क्या होगा कि वो शहद की मानद मीठा होगा। बेशक ये कलाम कड़वा है, इसको जब हम मुंह में रखते हैं तो ये मेरी और आपकी जिंदगी की तमाम बुराइयों को जाहिर करना शुरू कर देता है। जिस तरह उस जनाकार औरत को जो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई और लोग उसको संसार करना चाहते थे, जब यीशु मसीह के पास वो आई, लेके आए, तो यीशु मसीह ने जमीन पर लिखना शुरू किया। उसने मेरे और आपके ऐब जाहिर कर दिए। कलाम मेरे और आपके दरमियान है। कलाम पुरफजल है। कलाम जो मेरे और आपके साथ है, यानी यीशु मसीह जो मेरी और आपकी जिंदगी में है। अगर आप आखिर तक यीशु मसीह के साथ पैवस्ता रहेंगे, आखिर तक उसके साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि उसने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो। जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लाती है। अब फल लाना क्या है? यीशु मसीह मुझे और आपको सरफराज करना चाहता है। जिस तरह यहां पर यशवा की किताब में लिखा है कि वो मुझे और आपको तब जाकर तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी, यानी तब जाकर तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। अगर हम यीशु मसीह के साथ उसके आयन पर, उसने तो क्या कहा कि तू चोरी ना करना। मूसा ने तो कहा कि तू चोरी ना करना, तू ज़ना ना करना। मगर यीशु ने क्या कहा कि मैं तुम्हें एक हुक्म देता हूँ
और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखो, तब जाकर तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी, सरफराजी मिलेगी, हाल में भी मुस्तकबिल में भी। मुस्तकबिल में क्या है? यीशु मसीह है। जो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है उसकी जिंदगी में यीशु आ जाता है। इस तमार को जो अपनी जिंदगी में ले लेता है, इस दुनिया में तो उसको मुश्किलात परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, मगर आसमान पर जब मेरी और आपकी जिंदगी का इंतहा होगा, उस वक्त वो मुझे और आपको लेने के लिए आएगा, और फिर वो क्या करेगा? वो कहेगा कि मैं तुझे अपने साथ बैठाता हूं उस तख्त पर जो उसने खुद हासिल किया है, दुखों से, मुसीबतों से। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदा मुझे और आपको कहता है, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बेशक हम खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इस वक्त मायूसी, नामीदी में गिरफ्तार हैं, मगर यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, खौफ ना खा। आज कलीसिया बीमारियों से, दुखों से, गरीबी से परेशान है, मगर यीशु कहता है खौफ ना खा, बेदिल ना हो, मैं तेरी सारी मुसीबतों को जानता हूं, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आज वो मुझे और आपको जिंदगी का ताज देना चाहता है। आए इन इम्तिहानात में से, इन परेशानियों में से निकलने के लिए यीशु मसीह को अपने साथ शामिल कर लें, क्योंकि वो आपके साथ है, वो आपका खुदावंद है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।